हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1 u1, ये मूव कर रहा है और ये एक और ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है, कोलिजन होती है, the second object was stationary. After the collision, m2 is moving at an angle theta, m1 is moving downwards at angle alpha. Linear momentum along x-axis will be conserved and y-axis will be conserved. तो मैं इसमें m1 का और m2 के कंपोनेंट निकालूंगा. m2v2 sin theta is the vertical component, m2v2 cos theta is the horizontal component. Similarly for m1v1, cos alpha is horizontal and m1v1 sin alpha is vertical. Initially, m1u1 is the initial momentum. After the collision, both the momentums are along x-axis. I will add them up. For y-axis, initial momentum is 0. This is positive. This is negative. So m2v2 sin theta minus m1v1 sin alpha, if I add them up, they should be equal to 0. तो जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. आप दोनों को सेपरेटली डील करेंगे और उनको इक्वेट करेंगे, इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो ये है लीनियर मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस. इट इज कंजर्व्ड. इट्स ए स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. The statement is simple. We have been using that. The total linear momentum of a closed system is conserved if no external force acts on the system. अब यहां पे भी इट्स अ 2 डायमेंशनल. कोई क्रैकर है या कोई चीज फायरवर्क है, वो एक्सप्लोड करता है एंड इट हैज 3 फ्रैगमेंट्स, 3m, 1.5m and 2m. It is vertically moving upwards and both these particles are moving at an angle theta and their velocities are also given to you. We have to apply law of conservation of momentum, linear momentum along x-axis and y-axis to see and find the value of theta. So there are 2 vectors, 1.5m and 2m. We'll find their component along x-axis and y-axis. Y-axis component are 6 into 2m sin theta and the other one has 8 into 1.5m sin theta. Similarly, if I equate them, it should be conserved. Observe, 7 into 3m should be equal to 8 into 1.5m sin theta plus 6 into 2m sin theta. M and m cancels out. So I get 21 on the left hand side and 12 plus 12, 24 sin theta on the other side. From here, sin theta will be equal to 21 over 24. And if I take sine inverse, I can find out the value of theta. We don't need to use the horizontal component because they will be equal. On the right hand side, it will be 12m sin theta. On the left hand side, it will be 12m sin theta. So using the x component, we will not be able to solve any question. Then they ask us find the kinetic energy of 2m and the ratio with kinetic energy of 1.5m. Kinetic energy is half mv square. Simplify. We get the answer as 0.75 because m and m cancels out. 1 by 2 cancels out. So we get 2 times 6 square and equal to 1.5 times 8 square. Simplify that and you will get the answer. Just give me 1 second. I'll just write it down that as well. Half cancels out, m cancels out. So if you simplify that, you will get the answer as 0.75.
Clear? Okay, one more question. You are getting such questions in theory as well as in MCQs. So कहते हैं इसकी इक्वेशंस आपने लिखनी है, टकराता है स्मॉल m कैपिटल M के साथ, small m moves with small velocity, angle theta 30 degrees, capital M moves with the velocity v, capital V, angle 40 degrees. तो आपने इक्वेशंस देखनी है कि इसकी क्या इक्वेशंस बनती है, which one is correct, which one is incorrect. So अगर मैं horizontal component की बात करता हूं तो it will have two component, mv sin theta is the vertical component and mv cos 30 will be your horizontal component. Similarly, capital MV sin 40 will be your vertical component and capital MV cos 30 will be your horizontal component. So if I just add x dimensions में बात करता हूं, I get MU should be equal to MV cos theta 30 plus MV cos 40. We have this equation? That's the third equation. So third one is correct. Vertical. MV sin 30 should be equal to MV sin 40. So D is the answer. Second भी correct और third जो है वो incorrect है, जो पहली equation है वो incorrect है. So B will be the answer. D is the answer. दोनों correct है, आखिरी second वाली भी और third वाली भी. सिर्फ पहली वाली equation जो है वो incorrect है because वो straight में momentum को equal कर रही है. That is not there, so it is incorrect. Because MU cannot be equal to MV plus small mv because they are at an angle. Only linear momentum is conserved. Okay, next. We have a particle P, नाइट्रोजन पार्टिकल है, वो कोलाइड करता है another नाइट्रोजन पार्टिकल Q के साथ और फिर वो दोनों एक सर्टेन एंगल पे मूव कर रहे हैं 55 डिग्रीज एंड 34 डिग्रीज. P की वेलोसिटी हमें मालूम है, Q की वेलोसिटी हमने निकालनी है, वही कैलकुलेट करनी है. तो हम यहां पे कंपोनेंट निकालेंगे. 180 के हिसाब से दो कंपोनेंट बनेंगे, 180 m cos 55 और इसके कंपोनेंट बनेगा 1 v इंटू m cos 34. ये एक्स एक्सिस का हमारे पास इक्वेशन बन रही है. अब यहां से आप स्ट्रेट में सॉल्व कर सकते हैं इसको एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v. y एक्सिस का भी हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. अब आपकी मर्जी है, चाहे एक्स एक्सिस से सॉल्व कर लें या वाई एक्सिस से सॉल्व कर लें. बोथ इक्वेशंस विल बी इक्वली यूज्ड. अगर y से करने से m से m कट जाएगा तो v sin 34 इज इक्वल टू 180 sin 55. वहां से v निकाल लें आप. इट कम्स आउट टू बी 263 या 260. यू कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशन यू वांट. सो योर आंसर इज डी. इस तरीके से हम मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस को सॉल्व करते हैं. Now we start motion of an object in 2 dimensions. जिसको हम projectile motion कहते हैं. Okay, let's see what is a projectile motion. And in this case, we assume that air resistance is negligible. What will happen if you throw an object at a certain angle? It will follow a certain path. That path is called a projectile motion. It will be covering a certain horizontal distance. It will be covering a certain vertical distance in a certain time interval. So both motions will be applicable. What are the assumptions? Assumption लिख लीजिएगा.
vertical motion is accelerated, acceleration is constant and downward. It is always equal to minus 9.81. Horizontal component velocity is constant and only time is common between vertical and horizontal velocity. These are conditions लिख लीजिएगा. So such a motion is called a projectile motion. अब इसको मैं practical demonstrate करता हूं by using certain values so that you understand what is the projectile motion, how we use it. It's a simple example. मैं भी ये बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा. ये 3-4 कंडीशन जो हमेशा हम इस पे अप्लाई करेंगे. That is, horizontal velocity always remains constant. Vertical motion is accelerated. और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा 9.81 ली जाएगी. एंड ओनली टाइम इज कॉमन इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन. नोट कीजिएगा, जिस वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हैं उसके मैंने 2 कंपोनेंट निकाले हैं, कि एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट. एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. यहां पे भी वही वैल्यू है, यहां पे भी, इधर भी और आखिर तक. मगर वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जब टॉप पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अब इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड के ऊपर. ये देखिए मेरे एक्सिस है और मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद अ वेलोसिटी v. इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी v. It will follow a certain path. This path is called projectile motion. Let us assume that हमारी जो velocity थी वो 50 meters per second. And this angle is 52 degrees. This angle is 53 degrees. ये कॉपी करने का जरा. तो वो आपसे कहेगा, बताइएगा व्हाट इज योर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. तो याद कीजिएगा, हमने पहले भी किया हुआ है कि अगर ये हमारा 50 मीटर्स पर सेकंड है, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल एंड द अदर वन इज हॉरिजॉन्टल. दिस विल बी 50 sin 53 and this will be 50 cos 53. This comes out to be 30 and this comes out to be 40. अब इस केस में इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन रहे हैं. एक बन रहा है 30 और दूसरा बन रहा है 40. And it will follow a certain path. अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, अब जरा गौर से देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे. पहले मैं सॉल्व करूंगा वर्टिकल मोशन. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका है और फिर वहां से वापस आएगा, बिल्कुल वैसे ही हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे फॉर फाइंडिंग द वर्टिकल हाइट. तो पहले मैं इसकी वर्टिकल हाइट निकालने के लिए कैलकुलेशन करूंगा. दिस इज योर वर्टिकल हाइट. इसके लिए जो कंपोनेंट हम यूज करेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट है. So my initial vertical velocity is 40. My final vertical velocity will be 0 and acceleration will be minus 9.81. जिस तरह हम वर्टिकल मोशन को सॉल्व करते थे, ये वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हम बिल्कुल यही अपनी थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे. अब मैक्सिमम हाइट के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. 0 minus 40 square is 2 times minus 9.81 into h.
and from here I will calculate the value h. H comes out to be 40 square divided by 2 times 9.81, which is 81.6. तो जब आपसे कहा जाएगा मैक्सिमम हाइट निकालें, तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके ये अप्लाई करेंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्टिकल ही मूव कर रहा है, मगर वो साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा हो, मगर फिलहाल सॉल्यूशन के लिए सिर्फ आप वर्टिकल मोशन को ही कंसीडर करेंगे. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट t v minus u over a 0 minus 40 divided by minus 9.81, because इनिशियल वेलोसिटी हमारी 40 है, फाइनल 0 हुई और टॉप पे पहुंचेगा. तो मेरा आंसर यहां पे t आ रहा है 4.08 सेकेंड्स. फिर वो कहते हैं व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर तक वो हवा में रहा. जितनी देर में वो ऊपर जाएगा उतनी देर में वापस आएगा. In this case it will be 2 times t. So it comes out to be 8.16 seconds. तो इस तरह आप वर्टिकल मोशन को सॉल्व करेंगे. फिर वो कहते हैं जी कि व्हाट इज द रेंज. रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड वी नो दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. सो रेंज के लिए हम u हॉरिजॉन्टल को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से. बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. That means it will be 30 multiplied by 8.16 and you will get the value of range as 244.8 या 245 meters. तो हमने इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है. दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वर्टिकल मोशन को वर्टिकल मोशन की तरह, हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग डील करेंगे. सिर्फ टाइम जो है वो कॉमन हो. अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप, तो जब ये टॉप पे पहुंचेगा उस वक्त भी इसकी वेलोसिटी 30 ही होगी, बिकॉज योर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0. और इसी तरीके से जब ये नीचे गिर रहा होगा तो यहां पे ये अब भी 30 ही होगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स. ये 30 ही रहेगी, ये 30 ही रहेगी, and finally here this will still be 30 and this will become 40. इस तरह जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तब भी यही था कि ये आपकी 30 है. फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटर की बात कर लेता हूं. यहाँ पे ये 30 है, ये 20 हो गई. यहाँ पे ये 30 है, ये 10 हो गई. और जब टॉप पे पहुंचेगा तो वो फिर भी 30 होगी और वेलोसिटी टॉप पे वर्टिकल वाली जो है 0 हो जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. इसको हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे. इसी तरीके से वी हैव हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन? ये देखिएगा कि ये एक पहाड़ी है या कोई भी बिल्डिंग है. फॉर एग्जांपल दिस इज 100 मीटर्स और ये ऑब्जेक्ट को हमने
किक किया है हॉरिजॉन्टली 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। अब ये जो फॉलो करेगा पाथ वो भी प्रोजेक्टाइल ही है। जब वो जमीन पे पहुंचेगा उस वक्त इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 ही होगी, बट इट वुड गेन सम वर्टिकल वेलोसिटी। इस जगह पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। एंड इफ दे आस्क अस व्हाट इज दिस डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड, तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय u horizontal मल्टीप्लाई बाय टाइम। u horizontal जो है वो 20 होगी। अगर हमें टाइम मालूम हो जाए कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, तो फिर हम ये डिस्टेंस d भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कितना टाइम लगा है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि जितने टाइम में ये 100 मीटर ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में ये d ट्रेवल करेगा। सो हाउ मच टाइम विल टेक टू ट्रेवल 100 मीटर्स। हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, और हमें यह मालूम है कि इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड होगी। बिकॉज सर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर वाला यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहां सॉल्व करता हूं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 9.81 अंडर रूट लगाऊंगा तो मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन टी की वैल्यू क्या आती है सर 4.5। 4.5 सेकेंड। तो अगर 4.5 सेकेंड में ये 100 मीटर ट्रेवल कर रहा है उतनी ही देर में इसने डी ट्रेवल किया था। तो दैट मीन्स डी विल बी इक्वल टू 20 इंटू 4.5 which comes out to be 90 meters। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एडी? ए बी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इफ यू ऑब्जर्व दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के 90 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर लगा के आप डिस्प्लेसमेंट ए बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या आंसर आता है, 100 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर अंडर रूट 135, correct? Okay, can you find out this final vertical velocity? Initial vertical velocity was 0. Time taken is 4.5. The final vertical velocity will be v is equal to u plus at. 0 plus 9.81 into 4.5. देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है? What's the answer? सर 44.1। 44.1 मीटर पर सेकेंड। क्या मुझे आप रिजल्टेंट वेलोसिटी बता सकते हैं? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी? Resultant velocity, again Pythagoras theorem, 20 square plus 44.1 square। तो इस तरह हम हाफ प्रोजेक्टाइल को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसा है कि जमीन से ऊपर गया फिर नीचे आया, और ये ऐसा है कि हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है। तो दो ही 48.4। कितना? 48.4। तो ये दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड फुल प्रोजेक्टाइल, जो जमीन से ऊपर गया फिर नीचे आया।
इसको कहते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ रहा है, दोनों के ऊपर सेम कंडीशन अप्लाई की जाएंगी। दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। कल जो है इसे क्वेश्चंस करेंगे। सो मेक आई थिंक इसकी मैंने वर्कशीट शायद पोस्ट नहीं की है, मैं वर्कशीट आज पोस्ट कर देता हूँ। मेक श्योर दैट यू हैव इट प्रिंटेड सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। इसकी मैं पिक्चर खींच के जो ग्रुप में डाल रहा हूँ, जरा इसको जाके जरा आराम से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा और ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड इट्स इंपॉर्टेंस।